Hello students, good afternoon all of you. Today we will discuss about article 1.7, that is protection from weeds. In our previous lecture we have studied about the article 1.6 irrigation. Now we are going for the protection from weeds. Buzo and Paheli went to a nearby wheat field and showed that there were some other plants in the field growing along with wheat plants. Okay, so these other plants are what? They are weeds because they unwantedly growing with the wheat field. Okay, so have these other plants been planted purposely? So what is the purpose for these other plants? Buzo have question in his mind. So in a field, many other undesirable plants which we don't desire in our field may grow naturally along with the crop. उन्हें हम grow नहीं करते, वो naturally grow हो जाते हैं. So these undesirable plants are called as weeds. Okay. Now the removal of weeds is called weeding. So these are undesirable plants. So we have to remove these plants. So removal of these, removing process of these plants is called, or these weeds are called weeding. Okay, weeding is necessary since weeds compete with the crop plants for water, nutrition, space and light. Okay, देखो जो विड्स होते हैं वो क्रॉप के साथ जो वाटर, न्यूट्रिशंस और स्पेस और लाइट होता है उसका पूरा यूज़ करते हैं, और इनफैक्ट विड्स आर ग्रोइंग फास्टली. So that's why we have to remove from the field. So our the required production of crop is make in better way. So thus they affect the growth of the crop, or also these weeds are affect the growth of crop because they use water, nutrition, space and light. Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. और कुछ वीड्स तो ऐसे होते हैं जो हार्वेस्टिंग यानी कि जब क्रॉप का कटिंग होता है उसमें भी इंटरफेयर करते हैं, वो भी उसके साथ कट हो जाते हैं. एंड दे आर पॉइजनस यानी कि वो काफ़ी जहरीले होते हैं, बिकॉज क्रॉप्स जो होते हैं वो हम एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स के लिए होते हैं. तो अगर उसमें जो है वो वीड्स हार्वेस्टिंग के टाइम पे कट हो जाएंगे, so they can harm us, human beings like us or animals. So farmer adopt many ways to remove weeds and control their growth. Okay, तो अब weeds को remove करने के लिए हम different kinds of ways use करेंगे और जो उनकी growth है उनको control करेंगे. Tilling before sowing of crops helps in uprooting and killing of weeds. तो आप अपने स्टार्टिंग में देखा था आर्टिकल 1.2 और 1.3 में हमने टिलिंग प्रोसेस किया था. टिलिंग प्रोसेस इज़ नथिंग बट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल. हमने सॉइल को लूज और टर्न आउट किया था. इस वजह से जो है वो वीड्स का जो ग्रोथ होता है वो कम हो जाता है. सो टिलिंग जो होता है वो नेसेसरी होता है टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द this weeds or before sowing of the crops. Now this may help, this may be done when they then dry up and get mixed with the soil. Okay, so this process is done when the soil is dry up and get mixed with the soil. The best time for the removal of weeds is before they produce flower and seeds. Okay, इससे पहले वीड्स में फ्लावर और सीड्स आ जाए उससे पहले उसको रिमूव कर देना चाहिए. दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ रिमूवल विद द वीड्स. द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ द वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम. तो उनका मैनुअल वे क्या है, उनको हमें अपरूटिंग करना है यानी कि उनके रूट को ज़्यादा फैलने नहीं देना है सॉइल के अंदर और उनको ग्राउंड से कट करना है फ्रॉम टाइम टू टाइम. सो मतलब बार बार उनको कट करना पड़ता है बिकॉज दे आर ग्रोथ easily in the field or fastly in the field. So that's why we have to cut it time to time or cut it by uprooting.
This is done with the help of a khurpi. So for this we have using a tool which named is khurpi. A seed drill is also used to uproot weeds. Okay, तो खुरपी भी हम यूज़ करते हैं और सीड ड्रिल भी यूज़ करते हैं. खुरपी इज़ एन ट्रेडिशनल मैथड, ट्रेडिशनल टूल, while seed drill is an modern method or modern tool to uproot the weeds. Weeds are also controlled by the using certain chemicals called weedicides. So these weedicides are chemical component which are used to control the weeds, to control the growth of the weeds in the field, and these are like 2,4-D. Okay, this 2,4-D is one kind of chemical which is named is weedicides, and it is help us to control the weeds in the field. These are sprayed in the fields to kill the weeds. सो weeds को डायरेक्टली किल करने के लिए उन्हें हमें खुरपी और सीड ड्रिल की मदद से रिमूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है. इनको हम स्प्रे कर देंगे अगर हमारे फील्ड में, सो दैट विल बी किल आउट विद इन अ डे. नाउ दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स. ऑल्सो क्रॉप को भी डैमेज नहीं करेगा. जो विडिसाइज होता है वो केमिकल कंपोनेंट होता है, बट दे ओनली हार्म द और किल द weeds. They do not harm or damage the crops. The weedicides are the diluted with water to extent required and sprayed in the fields with a sprayer. These weedicides are dilate means उनको मंद किया जाता है, मीन्स उनका जो मतलब जो सांद्रता होता है उसको कम कर दिया जाता है विथ वाटर. सो वाटर के साथ हम कोई भी केमिकल को ऐड करते हैं, सो दैट विल बी डायलेटेड and to extent required and sprayed in the fields with a sprayer. और उसको फील्ड में स्प्रेयर के थ्रू स्प्रे किया जाता है. So this is a picture of spraying weedicides. Okay, so how the farmer is spraying this weedicide in the field. Do weedicides have any effect on the person handling the weedicide sprayer? So बूजों के माइंड में अगेन एक क्वेश्चन अराइज होता है, the weedicide have any effect on the person handling the weedicide sprayer. जो पर्सन weedicide sprayer को हैंडल करके रखता है, पकड़ के रखता है, क्या उसके ऊपर कोई इफेक्ट होता है? मीन्स क्रॉप डजंट इफेक्टेड बाय द weedicide, ओनली द weeds are affected. But what about the human being or a person who handle the weedicide sprayer? So as already mentioned, the weedicide are sprayed during the vegetative growth of the weeds before flowering and seed formation. तो आप देख सकते हो कि जो weedicides है वो कब स्प्रे किए जाते हैं? ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द weeds. वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द weeds मीन्स बिफोर द फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन, यानी कि जब उनमें फ्लावरिंग और सीड का फॉर्मेशन होता है उससे पहले जो है हमें weedicide को स्प्रे कर देना चाहिए. तो जो weeds है वो ईजिली रिमूव हो जाएंगे फ्रॉम द फील्ड. अदरवाइज अगर उनके अंदर फ्लावर और सीड्स आ गए, सो दे गेट ग्रोथ and other weeds in the field. Spraying of weeds may affect the health of the farmers. Okay, if weedicide को हम स्प्रे करेंगे, so they may affect the health of the farmers. उससे फार्मर की हेल्थ को अफेक्ट होगा. क्रॉप डजंट अफेक्ट, बट health of the farmer can get affected by using the weedicide sprayers. Now so there is a solution for this. So they should be use these chemicals very carefully. Okay, so इस chemical को उन्हें carefully use करना होगा, because the health of the farmer get affected by these weedicides. They should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying these chemicals. उन्हें अपना नोज़ और माउथ जो है वो किसी क्लॉथ के थ्रू कवर करना पड़ता है. सो दिस इज़ द सोल्यूशन फॉर द weedicide users or farmers. Now we discuss the last one, that is important part, that is harvesting. Okay, so हमने जो है वो क्रॉप को प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पहले देखा, फर्स्ट आउट. देन वी यूज़ द एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स फॉर टिलिंग एंड प्लोइंग. Then we go for sowing or cultivator.
and we show about traditional and modern tools. Then we go for adding manure and fertilizers, and for irrigation last one, and we show some traditional sources or methods for irrigation and modern methods for irrigation. And we studied earlier also the protection from weeds. Now we go for harvesting. Harvesting of a crop is an important task, बिकॉज अगर हम हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे तो फील्ड में पड़े पड़े तो फूड नहीं बनने वाला ना क्रॉप से. सो दैट्स वाई दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क. द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग. जब क्रॉप मैच्योर हो जाता है, यानी कि क्रॉप अब ईजीली मतलब ग्रो कर जाता है अच्छे से, तो उसके बाद वो मैच्योर कहा जाता है. ठीक है, जिस तरह से हम बड़े हो जाते हैं, आफ्टर 18 वी कॉल्ड एज मैच्योर. So that's why the crop is also called as mature after it will be ready for cutting or harvesting. So harvesting crops are pulled out or cut close to the ground. ठीक है, या तो हम उन्हें पुल करते हैं या सॉइल के थ्रू, या फिर क्रॉप को जो ग्राउंड से कट करते हैं. ठीक है, so that is called as harvesting. It is usually takes to 4 months for a cereal crop to mature. ठीक है, किसी भी cereal crop को mature होने के लिए 4 months लगते हैं. So harvesting in our country is either done manually by sickle or may by a machine कॉल्ड हार्वेस्टर. ठीक है, या तो हम एक सिकल का यूज़ करते हैं या किसी हार्वेस्टर का यूज़ करते हैं. सो उसके थ्रू हार्वेस्टिंग होता है. इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड. जो हार्वेस्टेड क्रॉप होता है उसमें जो ग्रेन सीड्स होते हैं उनको सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द चेफ. जो चेफ होता है उसके थ्रू जो है ग्रेन और सीड्स को सेपरेट किया जाता है क्रॉप के अंदर से. दी प्रोसेस इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग. सो ग्रेन सीड्स को अलग करना क्रॉप के अंदर से फ्रॉम द चैफ इज़ नॉन एज थ्रेशिंग. दिस इज़ कैरिड आउट विथ द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन. तो कंबाइन करके एक मशीन होता है जिसके थ्रू ये थ्रेसिंग का प्रोसेस होता है. थ्रेसिंग मीन्स टू रिमूव और सेपरेट द ग्रेन सीड्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप. ओके, and this machine is in fact a harvester as well as a thresher. ठीक है, तो इससे जो है वो हार्वेस्टिंग भी हो जाता है और थ्रेशिंग भी हो जाता है, यानी कि दोनों प्रोसेस एक साथ हम कर सकते हैं यूजिंग अ कंबाइन. सो वी डोंट हैव टू यूज़ एनी हार्वेस्टर और सिकल फॉर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स. वी कैन यूज़ कंबाइन and we do the both process, harvesting and threshing. So harvesting is nothing but cutting the crop from the field, and threshing is nothing but removing or separating the seed grains from the harvested crop. Now Paheli tells that after harvesting sometimes stubs are left in the field. तो कुछ स्टब्स लेफ्ट हो जाते हैं फील्ड में विच आर बर्नड बाय फार्मर्स. तो फार्मर उन्हें बर्न कर देता है. पहेली इज़ वरीड. सो पहेली वरीड है वाई द फार्मर डिड लाइक दैट. सो सी नोज दैट द कॉज इज पॉल्यूशन. इसकी वजह से पॉल्यूशन होता है. सो इट मे ऑल्सो कैच फायर एंड डैमेज द क्रॉप लाइंग इन द फील्ड्स. तो फील्ड में बाकी की जो क्रॉप्स है वो डैमेज नहीं हो जाएगी, उसके माइंड में ऐसा क्वेश्चन आता है. सो फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ land do the separation of grain and chaff by winnowing. सो फार्मर्स क्या करते हैं, स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड, यानी कि कुछ लैंड का वो स्मॉल पार्ट वो होल्ड करते हैं. डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन, और वो ग्रेन को सेपरेशन करते हैं, एंड चेफ करते हैं बाय विन्नोइंग. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द क्लास 6 दिस थिंग्स यू हैव स्टडीड इन योर क्लास. दिस इज़ अ विन्नोइंग मशीन. Now there are some harvest festivals which are celebrated after the harvesting of the crops in India.
सो आफ्टर 3 or 4 months ऑफ द हार्ड वर्क, यानी कि 3-4 महीनों के हार्ड वर्क के बाद देर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट, और हार्वेस्ट का डे आता है, मीन्स हार्वेस्टिंग को सेलिब्रेट करते हैं फार्मर्स। द साइट ऑफ द गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप, और जो फील्ड है वो पूरा गोल्डन हो जाता है, मीन्स द ग्रेन आर हियर, द ग्रेन फील्ड आर हियर कॉल्ड एज गोल्डन फील्ड्स of standing crops, laden with grain, fill the heart of the farmer with joy and sense of well-being. Okay, so मतलब after getting the crop grains or seed grains from the crop, farmer feel enjoyable and well-being. So the effort of the past season have borne fruit and it is time to relax and enjoy. तो अभी जो है वो आफ्टर द हार्ड वर्क ऑफ 4 month, अभी जो टाइम है वो फार्मर के लिए वो इंजॉइंग का टाइम है। ओके, बिकॉज उसने जो हार्ड वर्क किया है उसको उसका फ्रूट मिल गया, उसको उसका फल मिल गया, एंड दिस इज़ अ टाइम टू रिलैक्स एंड enjoy a little. The period of harvest is thus of great joy and happiness in all parts of India. So this is the great joy and happiness part of the India. Men and women celebrate it with great enthusiasm. ठीक है, उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स को। स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन्स आर पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नेब्या एंड बिहू। ठीक है, सो इस तरह से कई सारे फेस्टिवल्स, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स हैं विच आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया इन डिफरेंट कंट्री, डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द इंडिया. Now we study the last one, that is the storage of the सीड ग्रेन्स. ओके, तो अब हमने जो है वो ग्रेन्स को मतलब फार्म से कंबाइन के थ्रू या फिर थ्रेशिंग का जो प्रोसेस है उसके थ्रू हमने क्या किया है, और विनोइंग ऑफ मशीन्स के थ्रू हमने सीड ग्रेन को कलेक्ट कर लिया. ठीक है, अब उसको स्टोर कहाँ पे करेंगे. सो दिस इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फार्मर. स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क. ठीक है, मतलब जो भी हमने प्रोड्यूस किया है फील्ड में से, फार्मिंग फील्ड में से, उसको स्टोर करना वो भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है. इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी कैप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, मीन्स उसको फील्ड के अंदर हम हार्वेस्टेड ग्रेन्स को लॉन्गर टाइम फील्ड में रखेंगे. दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर. तो वो क्या करेंगे, मॉइस्चर से सेफ हो, मतलब दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर. उनको मॉइस्चर से, यानी मॉइस्चर मीन्स जो मतलब एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर होता है उससे जो मतलब एलिमेंट फॉर्म होता है उसको मॉइस्चर कहा जाता है. तो उस मॉइस्चर से मतलब सेव करने के लिए इंसेक्ट्स, रेट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स, ये सारे क्या होते हैं, सीड्स के लिए हार्मफुल होते हैं, सीड ग्रेन्स के लिए. तो अगर ज़्यादा टाइम ये फील्ड में रहेंगे तो दे गेट अफेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रेट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज़म. सो वी हैव टू स्टोर दिस seed grains or harvested grains. Harvested grains have more moisture. ठीक है, हार्वेस्टेड ग्रेन जो होता है उनके पास ज़्यादा मॉइस्चर होता है और उन्हें एक्स्ट्रा मॉइस्चर मिलेगा, तो दे गेट अफेक्टेड. इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स और सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, मतलब अगर उन्हें बिना ड्राई किए अगर हम स्टोर कर लेंगे, दे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्टिव. वो खुद ही उनके पास इतना मॉइस्चर होता है क्योंकि वो अभी 4 महीनों के बाद रेडी होने के बाद ग्रो किए गए हैं, बट दे हैव मॉइस्चर, मोर मॉइस्चर. और उसके बाद अगर हम उन्हें ड्राई नहीं करेंगे, सो दे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्टेड बाय ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म का अटैक हो जाएगा उन पर, मेकिंग देम अनफिट एंड फॉर यूज़ और फॉर जर्मिनेशन. ठीक है, और उसमें जर्म्स आ जाएंगे और वो अनफिट हो जाएगा by attacking the organisms. So hence before storing them, उन्हें स्टोर करने से पहले the grains are properly dried, उन्हें अच्छे से ड्राई करना होता है in the sun to reduce the moisture, मॉइस्चर को कम करने के लिए. उनके अंदर जो मॉइस्चर होता है उसको सन के मदद से ड्राई किया जाता है, या फिर हमें ड्रायर यूज़ कर सकते हैं. दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी.
सो इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया और फंगी, ये सारे जो है वो मॉइस्चर ज़्यादा होगा अगर हार्वेस्टेड ग्रेन्स में, सो वो उनको अफेक्ट करेगा. सो दैट्स वाई यू हैव टू रिड्यूस दिस हार्वेस्टेड ग्रेन्स. सो नाउ पहेली have one more question. I show my mother putting some dried neem leaves in an iron drum containing wheat. I wonder why. मीन्स उसकी मम्मा ने क्या किया कि जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स होते हैं उसको एक आयरन कंटेनर में स्टोर किया और उसके साथ जो ड्राइड नीम लीव्स होती हैं, यानी कि नीम की सूखी हुई जो पत्तियाँ होती है, उसको उसके साथ मतलब डाल दिया. तो पहेली को आश्चर्य हुआ कि उसकी मम्मा ने ऐसा क्यों किया है. सो दिस though the farmers use dried leaves of neems because farmers store grains in jute bags or metallic bins. However, large scale storage of grains is done in silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. Also, the dried leaves are used for storing food grains at home. यानी कि अगर हम घर पे फूड ग्रेन्स को स्टोर कर रहे हैं, सो द ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर दिस. फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन्स, स्पेशल केमिकल ट्रीटमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो अगर हमें लार्ज क्वांटिटीज़ में ग्रेन्स को स्टोर करना है लाइक गोडाउन, और तो उसके लिए हमें स्पेशल केमिकल ट्रीटमेंट देना होगा उन्हें to protect them from pests and microorganisms. So there are some pictures shown for store the food grains, silos for storage of grains. These are the silos. And the second picture is storage of grains in gunny bags in granaries. ये ग्रेनरीज में गनी बैग्स हैं, यानी कि जूट से बने हुए बैग्स हैं, और मेटालिक बीन्स भी है, ये लाइक मेटालिक बीन्स. तो इस तरह से जो है वो हम क्रॉप हार्वेस्टेड ग्रेन्स और क्रॉप को जो है वो हम स्टोर करते हैं. नाउ द लास्ट आर्टिकल 1.10 फूड फ्रॉम एनिमल्स. ओके, सो हम एनिमल के थ्रू कौन से फूड जो है वो प्राप्त करते हैं उसके बारे में यहाँ पे हम स्टडी करेंगे. हमने फील्ड और फार्मर के थ्रू जो है वो बाय एग्रीकल्चर हमने जो है वो क्रॉप्स वगैरह जो ये वेजिटेरियन फूड्स है वो हमने लिया. अभी हम एनिमल के थ्रू वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन फूड्स कैसे प्राप्त करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे. सो दिस इज़ एक्टिविटी 1.3. मेक अ टेबल in your notebook and complete it. What this table? This is table that is food or sources. मतलब सोर्सेस वही एनिमल सोर्स होना चाहिए आपका. जो भी आप फूड गेट करते हो फ्रॉम द एनिमल सोर्स, यू हैव टू राइट इन दिस टेबल. सो देयर इज़ वन एग्जाम्पल, दैट इज़ मिल्क. मिल्क हमें किससे मिलता है? काउ, बफेलो, शी गोट और शी कैमल. ठीक है, तो मीन्स फीमेल वर्जन ऑफ द एनिमल दैट इज़ कैमल और शी गॉट. ओके, और बफेलो और काउ, इनसे जो है वो हमें मिल्क मिलता है. सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स, एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड्स. ओके, सो प्लांट्स और एनिमल्स क्या करते हैं? हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड प्रोवाइड करते हैं. Many people living in the coastal areas consume fish as a major part of their diet. So बहुत सारे people क्या करते हैं? coastal areas में रहते हैं, to consume fish, और वो fish को consume करते हैं as a major part of their diet. तो वो as a fish को मतलब अपने diet में use करते हैं for as a food. In the previous classes you have learnt about the food that we obtain from plants. और प्रीवियस पार्ट में आपने देखा कि जो हमने फूड जो मतलब प्रोड्यूस किया था, मतलब जो गेट किया था फ्रॉम द प्लांट्स,
We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like a selection of seeds. Okay, सो उसके लिए हमने देखा था कि जो प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसमें कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं. नंबर ऑफ स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड. दैट इज़ फर्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ सीड्स, शोइंग एट्सेट्रा. सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स. ओके, तो एनिमल्स जो होते हैं वो भी रियर्ड होते हैं होम और फार्म में. हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड. उन्हें भी प्रॉपर फूड प्रोवाइड किया जाना चाहिए. सो अगर उन्हें प्रॉपर फूड मिलेगा तो वो हमें अच्छा जो है वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगी, अच्छी क्वांटिटी का और क्वालिटी का जो मिल्क है वो हमें मतलब प्रोवाइड करेंगे. इफ़ वी गिव प्रॉपर फूड फॉर काउ, बफेलो, शी गॉट और शी कैमल. ठीक है, उन्हें हम अच्छा खाना देंगे तभी वो हमें अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके देंगे. सो शेल्टर, उन्हें अच्छा रहने की जगह मिलनी चाहिए, यानी साफ़ सुथरी. ठीक है, वहाँ पे बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए. एंड केयर, और उनकी काफ़ी ज़्यादा केयर करनी चाहिए हमें. when this is done on a large scale, it is called animal husbandry. और ये हम लार्ज स्केल पे करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा जगह पे हम बहुत सारे एनिमल्स को एक साथ जो है वो शेल्टरिंग करते हैं, उनका उन्हें प्रॉपर फूड प्रोवाइड करते हैं, उनकी केयर करते हैं, तो इसको एनिमल हस्बेंड्री बोला जाता है. फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ. वी गेट कोड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी. ठीक है, तो फिश से हमें कॉड लीवर ऑयल मिलता है. ठीक है, एंड दिस इज़ वेरी हेल्दी फॉर आवर हेल्थ, एंड फ्रॉम दैट वी गॉट विटामिन डी. Now there are some keywords at last for this chapter. First, that is crop production and management. So you have to write these keywords in your notebook, and you have to first read this whatever you learnt, that is a short summary for this chapter 1. You have to just read out this summary. Okay, and try to solve the exercise problem by yourself. If you have any doubt, then let me know. Okay, I will share a workbook solution with you by Thursday. Okay, bye bye.